یہ انڈیا ہے اور انڈیا کے ادھر پاکستان، ادھر چین، ادھر انڈین سمندر ہے، ادھر بے آف بنگال ہے، ادھر بنگلہ دیش ہے۔ اور جب کسی بھی دیش کی لڑائی اپنے پڑوسی دیش کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو دوسرے پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو۔ اس کے علاوہ جو پڑوسی دشمن ہیں اس کے پڑوس میں جو دیش ہے اس سے ہمارا اچھا تعلق ہو، کیونکہ عموماً دو پڑوسیوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور پھر اس پڑوسی کے ذریعے اس دوسرے دیش کو ڈسٹرب کیا جائے۔ اب یہ انڈیا ہے اور یہ پاکستان ہے، اور ادھر گلف جانے کا، مڈل ایسٹ میں جانے کا جو پورا راستہ ہے وہ پاکستان سے ہو کر گزرتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو فی الحال کشیدگی چل رہی ہے، جو کنفلکٹ ہے، اس کو لے کر کے پاکستان نے انڈیا کے لیے اپنا ایئر اسپیس بند کر رکھا ہے۔ انڈیا کا کافی نقصان ہو رہا ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن پاکستان کا پڑوسی ہے افغانستان، اور انڈیا کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ سفارتی سطح پر یا دوسرے معاملوں میں پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے، پاکستان کے ایجنڈا کو ناکام بنانے کے لیے افغانستان کا رشتہ انڈیا کے ساتھ رہے اور پاکستان کو ڈسٹرب رکھا جائے۔ ان دنوں یعنی جب آپریشن سندور ہوا، اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک طرح سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پاکستان نے بھی انڈیا کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا، اور اسی دن پھر جنگ بندی ہو گئی۔ سیز فائر کا امریکہ نے اعلان کر دیا، دونوں ملکوں نے اپنی آرمی کو پیچھے ہٹایا۔ ڈرون وار جو شروع ہو چکا تھا، دونوں ملکوں نے اپنے اپنے ڈرون کو بھیجنا بند کر دیا۔ اس کے بعد اچانک ایک بڑی خبر آتی ہے، اور خبر یہ تھی کہ انڈیا کے فورن منسٹر نے افغانستان کے فورن منسٹر سے بات چیت کی ہے، اور یہ بہت بڑی خبر تھی کیونکہ 1999 کے بعد پہلی مرتبہ انڈیا کے کسی فورن منسٹر نے براہ راست اور ڈائریکٹ بات چیت کی ہو افغانستان کے فورن منسٹر سے، اور افغانستان میں اس وقت طالبان کی حکومت ہے، تو یہ سب سے بڑی خبر تھی۔ اس سے پہلے ایک اور ایک دن خبر سامنے آئی تھی کہ جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی چل رہی تھی تو افغانستان طالبان کے ایک لیڈر نے خفیہ طور پر انڈیا کا دورہ کیا تھا، اور اس پورے ایشو سے پہلے دبئی میں انڈیا کے فورن سیکریٹری وکرم مسری کی ملاقات ہوئی تھی طالبان کے وزیر خارجہ سے دبئی میں، تو چیزیں صاف بتا رہی تھی کہ انڈیا افغانستان کی جو طالبان سرکار ہے اس کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر بنا رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی۔ جو پاکستان ہے اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی جو سرحد ہے کافی لمبی چوڑی ملتی ہے، جموں اینڈ کشمیر میں، پنجاب میں، راجستھان میں اور گجرات تک سرحدیں ہماری ملتی ہے پاکستان کے ساتھ، تو اسی طرح پاکستان کی جو سب سے لمبی چوڑی سرحد ملتی ہے افغانستان کے ساتھ، اور پاکستان اور افغانستان میں ہمیشہ لڑائی رہتی ہے، اور لڑائی اس وجہ سے ہے، یہ جو آپ لکیر دیکھ رہے ہیں اس سے ادھر کا جو ایریا ہے اس کو افغانستان اپنا علاقہ مانتا ہے، جس کو ڈیورل لائن بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے پاکستان کا زبردستی قبضہ ہے۔ اور اس کو لے کر کے خواہ افغانستان میں جو بھی حکومت ہو، امریکہ کی لائی گئی حکومت ہو یا طالبان کی سرکار ہو، دونوں کے درمیان انتشار رہتا ہے، اور اس انتشار کی وجہ سے دونوں کی جو لڑائی ہے عروج پر رہتی ہے۔ ابھی بھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان زبردست لڑائی ہے، سرحدوں پر فائرنگ کی خبریں آتی ہے، کئی مرتبہ لڑائیاں ہو چکی ہے سرحد پر۔ اب اس بیچ انڈیا نے افغانستان کے ساتھ رشتہ اچھا کرنا چاہا، کیونکہ انڈیا کی پاکستان کے ساتھ لڑائی ہے۔ ادھر چین بھی کھل کر پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو انڈیا اور چین میں بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ نیپال کی کوئی فوجی طاقت نہیں ہے، نیپال بیچ بیچ میں رہتا ہے۔ ادھر بھوٹان جو ہے وہ چین کا حصہ ایک طرح سے بن چکا ہے، میانمار ادھر آ چکا ہے۔ ادھر بنگلہ دیش اور انڈیا کے بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ مالدیوز نے چین کے ساتھ اچھے رشتے بنائے تھے، لیکن انڈیا کے ساتھ بھی مالدیوز نے اچھا رشتہ بنایا ہے، مالدیوز کو انڈیا نے مدد بھی دی ہے۔ ادھر سری لنکا ہے، تو ایسے میں کوشش یہ ہو رہی تھی کہ افغانستان اور انڈیا کے اچھے تعلقات ہو۔ اور جب یہ ساری باتیں ہوئی کہ افغانستان کے طالبان لیڈر نے انڈیا کا خفیہ دورہ کیا، ایس جے شنکر جو فورن منسٹر ہے انہوں نے طالبان کے وزیر خارجہ متقی خان سے بات چیت کی، اسی بیچ یہ خبر سامنے آ جاتی ہے کہ چین میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار موجود ہیں، طالبان کے فورن منسٹر امیر متقی خان موجود ہیں، اور یہ چین کے وزیر خارجہ ہے، اور ان تینوں کے بیچ میٹنگ ہوئی ہے۔ اور میٹنگ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو لڑائی ہے اس لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ چین نے ثالثی کرانے کا کام کیا، دونوں ملکوں میں سفارتی رشتہ بحال ہو جائے گا، اس کو بھی منظور کروا دیا چین نے، اور یہ جو ہے بہت بڑی خبر ہے۔ اور جیسے یہ خبر سامنے آتی ہے، انڈیا کے کچھ اخبارات نے یہ ٹائٹل بھی لگایا کہ طالبان نے انڈیا کو دھوکہ دینے کا کام کیا ہے، طالبان نے انڈیا کے ساتھ غداری کی ہے، اور انڈیا ہمیشہ طالبان کے سپورٹ میں رہا ہے۔
पिछले एक रिपोर्ट में मैंने बताया था कि अफ़गानिस्तान में इंडिया ने बहुत सारे काम कराए हैं। अफ़गानिस्तान की 178 किलोमीटर लंबी सड़क इंडिया ने बनवा रखी है। अफ़गानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग की तामीर इंडिया ने करा रखा है। उसके अलावा कई सारे वहाँ प्रोजेक्ट है वो इंडिया ने पूरे करवाए हैं, और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो भी अंडर प्रोसेस है। अस्पताल, स्कूल, ये सब काम भी इंडिया ने अफ़गानिस्तान में कराया है। अब ऐसे में इंडिया यही चाहेगा, इंडिया की कोशिश यही थी कि अफ़गानिस्तान पूरे तौर पर इंडिया के साथ हो। इधर बलूचिस्तान में कुछ हमले हुए, कुछ अटैक हुए, और उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अफराद मुलव्विस रहते हैं, वो लोग जिम्मेदारी भी लेते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने इन सब का इल्ज़ाम इंडिया पर लगाया। इंडिया ने सिरे से इसको रिजेक्ट कर कहा कि हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। उधर पाकिस्तान ये भी हमेशा कहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तालिबान का हमेशा सपोर्ट मिलता है, और तालिबान ने हमेशा इनकार किया और कहा पाकिस्तान का ये इंटरनल मामला है, और इसकी वजह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते ख़राब रहते हैं। लेकिन चीन ने बीच में आकर के इन दोनों के रिश्ते को बेहतर बना दिया है, और जो बातचीत हुई बहुत अहम है, उसको देखिए। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बैठक हुई 21 मई को बीजिंग यानी चीन की राजधानी में। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मिले। यह बैठक 2017 में शुरू हुई 3 देशों की त्रिपक्षीय वार्ता का हिस्सा था। 2017 में जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका की आर्मी थी, तालिबान की हुकूमत भी नहीं बनी थी अफ़गानिस्तान में, तो 2017 में ही चीन ने एक मीटिंग कराई थी तालिबान लीडर और पाकिस्तान लीडर में, और कहा गया कि 2017 में जो मीटिंग हुई थी उसी का हिस्सा है जो 2025 की मीटिंग हुई है। तो चीन ने एक बड़ा दावा किया। 21 मई को मीटिंग हुई। उसके बाद दूसरी खबर देख लीजिए कि दोनों देशों ने तय किया है कि वो फिर से एक दूसरे के यहाँ अपने राजदूत यानी सफ़ीर को भेजेंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अपने सफारती संबंध फिर से शुरू करेंगे, और ये बहुत बड़ी खबर है। अफगानिस्तान का जो सफारती रिश्ता है अभी चंद ही मुल्कों के साथ है। सबसे पहले नंबर पर चीन के साथ दोनों का सफारती रिश्ता है, और चीन के अलावा किसी भी मुल्क ने अभी तक ऑफिशियली अफगानिस्तान के साथ अपना सफारती रिश्ता बहाल नहीं किया है। कतर ने भी नहीं किया है, सऊदी अरब तक ने भी नहीं किया है। रूस ने तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाल रखा है। इंडिया ने भी तालिबान के साथ बाज़ाब्ता दोबारा सफारती रिश्ता बहाल नहीं किया है। बैक चैनल से, बैक डोर से सफारती सरगर्मियां जारी है। कई और मुल्कों की कतर मदद कर रहा है, यूएई मदद कर रहा है, लेकिन बैक डोर से डायरेक्ट। ऐसे में चीन सफारती रिश्ता कायम कर चुका है, और उसने पाकिस्तान को भी कहा है सफारती रिश्ता कायम करे। और जब पाकिस्तान और चीन के दरमियान, जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तालिबान के दरमियान सफारती रिश्ता कायम हो जाएगा, तो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी तालिबान की, और अफ़गानिस्तान की तालिबान पाकिस्तान से क़ुर्बत भी बढ़ जाएगी। एक और ख़बर देखिए कि चीन और पाकिस्तान की बड़ी सड़क और रेल योजना CPEC अब अफ़गानिस्तान में भी शुरू होगी। इससे व्यापार बढ़ेंगे और तीनों देशों चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को फ़ायदा होगा। इसको समझिए, ये जो है CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको कहा जाता है, और पिछले कई सालों से चीन पाकिस्तान में इस मंसूबे पर, इस एजेंडा पर काम कर रहा है। 62 अरब डॉलर से ज़्यादा का बड़ा ये मुआहदा है, और चीन का यही पाकिस्तान में जो मंसूबा है, जिसकी वजह से चीन पाकिस्तान की लगातार हिमायत करता है, उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि अरबों डॉलर का मंसूबा पाकिस्तान में जारी है, और अगर वो नाकाम हो जाएगा उसको नुकसान पहुंचेगा, या पाकिस्तान को अगर नुकसान पहुंचता है तो ये चीन का सीधे नुकसान होगा। तो ये बहुत बड़ी डील है चीन की पाकिस्तान के साथ। और अब चीन ने ऐलान ये कर दिया है कि ये जो CPEC है इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल हो जाएगा, यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर जो है अब वो चीन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। और ये जो कॉरिडोर बनेगा इसका अफ़गानिस्तान को यकीनी तौर पर बड़ा फ़ायदा होगा, और अफ़गानिस्तान का इसमें हर तरह से फ़ायदा है। अफ़गानिस्तान में जो भी रेलवे लाइन का काम हो रहा है वो भी चीन कर रहा है, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चीन काम कर रहा है, और ये जो मनसूबा है ये भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा चीन इसलिए भी अफ़गानिस्तान के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता है कि तुर्कमेनिस्तान जो है वहाँ से भी चीन में हमले होते हैं। तुर्कमेनिस्तान
अफगानिस्तान का दावा है कि वो उनका अपना इलाका जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान की तालिबान लीडरशिप से उनको मदद मिलती है, जैसे पाकिस्तान कहता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तालिबान की हिमायत मिलती है, सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से लोग हमला करता है। तो इस वजह से भी चीन ने अफगानिस्तान तालिबान के साथ अपने रिश्ते को अच्छे बना लिए। और अब ये जो खबर है ये सबसे ज़्यादा अहम है। और देखिए कि इंडिया ने तालिबान के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना शुरू किया था। ये जो तस्वीर है दुबई की, फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के विक्रम मिस्री, ये हैं तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ख़ान, ये तालिबान के दूसरे लीडर से दुबई में मुलाकात हुई। उसके बाद अभी एस जयशंकर ने फ़ोन पर बातचीत की थी और उधर तालिबान ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती में इजाफा शुरू कर दिया है। जो एक्सपर्ट हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, उनका मानना है कि भले ही पाकिस्तान चाहेगा कि अफ़गानिस्तान के साथ उसका रिश्ता बहाल हो जाए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जब रिश्तों की बहाली की बातचीत होती है तो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ झुकना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान को वहाँ पर मजबूरी हो जाती है और अफ़गानिस्तान यहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। अगर सफारत खाना खुल जाता है अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का तो यकीनन उसकी कामयाबी होगी, लेकिन अफ़गानिस्तान की जो तालिबान लीडरशिप है वो इंडिया के साथ अपने रिश्ते को नहीं बिगाड़ेगी, अपने रिश्ते को ख़राब नहीं कर सकती है, क्योंकि इंडिया का कई सारा प्रोजेक्ट है, इंडिया का अपना वहाँ मंसूबा है और इंडिया से अगर रिश्ता बना रहेगा अफ़गानिस्तान तालिबान का तभी पाकिस्तान भी उनके काबू में रहेगा। अगर इंडिया से रिश्ते बिगड़ गए तो फिर पाकिस्तान अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी अफ़गानिस्तान पर थोपना शुरू कर देगा। पाकिस्तान ये चाहेगा कि अफ़गानिस्तान की क़यादत वही करे जो पाकिस्तान चाहता है और इसी वजह से अमूमन लड़ाई भी होती है। अफगानिस्तान कहता है कि हम खित्ते में आज़ाद रहेंगे, हम तुम्हारे ताबे क्यों रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो रिश्ते थे वो रिश्ते अपनी जगह बरकरार है, लेकिन पाकिस्तान ने भी अचानक पैतरा बदलते हुए चीन से मदद की गुहार लगाई और चीन की सरपरस्ती में दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों की बहाली पर बातचीत हुई है। अगले दिनों में फिर मीटिंग होगी, बातचीत होगी, रिश्ता को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। अब ये इंडिया की हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि पड़ोसी देशों के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हो। राहुल गांधी ने कल एक ट्वीट करके सवाल पूछा था और 3 सवाल था उनका, जिसमें तीसरा सवाल राहुल गांधी का यही था कि जब इंडिया पर दहशतगर्दों ने हमला किया, पहलगाम टेरर अटैक हुआ और इंडिया ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुसकर मारा, आर्मी ने टेरर कैंप पर अटैक किया, तो दुनिया के कितने देशों ने इंडिया का साथ दिया। इंडिया पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। नो सिंगल कंट्री सपोर्टेड इंडिया, ये राहुल गांधी के वर्ड से अल्फाज है। उनका जो दूसरा 2 सवाल था वो ये कि पूरी दुनिया में इंडिया और पाकिस्तान को एक बराबर क्यों देखा जा रहा है। पाकिस्तान इंडिया के उत्तर प्रदेश से भी छोटा मुल्क है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कर्ज लेने पर हमेशा मजबूर होता है। दूसरा सवाल था राहुल गांधी का कि ट्रंप को, अमेरिका को किसने परमिशन दिया कि वो हमारे और पाकिस्तान के बीच में सालसी का फरीज़ा अंजाम दे। और तीसरा सवाल यही कि क्यों दुनिया के किसी भी मुल्क ने खुलकर इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। दूसरी तरफ खबर है कि पाकिस्तान को खुलकर चीन ने सपोर्ट किया, तुर्की ने सपोर्ट किया, अज़रबैजान ने भी सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया को खुलकर किसी भी मुल्क ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। ये फॉरेन पॉलिसी पर लगातार सवाल उठ रहा है। जो इंडिया के पड़ोसी देश है उन्होंने भी खुलकर सपोर्ट नहीं किया। सबसे ज़्यादा अहम है इंडिया के पड़ोस में इधर बांग्लादेश है, ईस्ट में ये बे ऑफ बंगाल है, बांग्लादेश ने खुलकर इंडिया को सपोर्ट नहीं किया, म्यांमार ने खुलकर सपोर्ट नहीं किया, भूटान ने खुलकर सपोर्ट नहीं किया, नेपाल जो इंडिया के रहमो करम पर है वो भी कभी कभी इंडिया को आंखें दिखाने लगता है, उसने भी खुलकर सपोर्ट नहीं किया। चीन तो खुलकर पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहा था, इधर पाकिस्तान से तो हमारी लड़ाई चल रही थी। श्रीलंका ने भी खुलकर सपोर्ट नहीं किया, मालदीव्स ने भी खुलकर इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ एक मुल्क इजराइल, जिसका दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों से नहीं जमता, उसने इंडिया को खुलकर सपोर्ट करने का ऐलान किया, लेकिन इजराइल खुद जंग में मुलव्विस है, खुद उसके यहाँ डर और खौफ का माहौल है। एक रॉकेट वहाँ गिरता है और तमाम इजरायली बुंकरों में जाकर छुप जाते हैं। तो ये सूरत हाल है, ये सच्चाई है। इस वीडियो में इतना ही। इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे अगले दिनों में हो सकते हैं, अफगानिस्तान की जो क़यादत है पाकिस्तान के साथ ज़्यादा रहना चाहेगी इंडिया के साथ, चीन का कितना नुकसान हो रहा है इंडिया को, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी।